So I think screen is visible now. Yes, sir. Yes, Okay, sir. good. Yes, sir. So what you are seeing at the front PPT, that is the thumbnail, you can say, of this lecture. So there are two photographs, and which I have uh, prepared by my own by drawing the sketch on my tab. So what you are seeing here, that at the right hand side, there is some transition showing the D1 and D2 lines. And at the left hand side, there is the transition from the different energy levels in case of alkali atoms. So how the separation of between S, P, D, and F of the different level or different energy states will occur, and how the transition will be there, that we will discuss in this alkali element. So let us start that what the examples are there, and by taking one example, we will discuss that how the transition is possible and how we are getting the spectral lines, especially in case of alkali element. So let us take the case of sodium. You might have seen the electronic configuration of alkali metals, what already I have discussed on the last turn, कि भाई outermost orbit में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वही इनके ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिस्कशन हमें करना है उसी ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन पे करना है. So let us take the case of sodium having the 11 number of electron as a total, and its normal outer configuration is 3s, and the corresponding term is s term. The various possible excited configuration and the corresponding terms are 4s, 5s, 6s, and so on, whatever you are seeing here for the s term. And for other term, that is for the p term, 3p, 4p, 5p, and other terms. Similarly, D, 3D, 4D, 5D. Similarly, F, 4F, 5F, 6F. So why I'm showing this one and from where it is coming. So friends, what you will see there, ki if you have 3s, then after 3s, for example, your electron is 3s1. Then after getting the energy, that electron will go to the higher energy level. Instead, that excitation level will be the higher, and next higher or next higher, depending that what energy has been absorbed by that electron. तो नेक्स्ट में आप 4s लेंगे, 5s पे जा सकता है, 6s पे जा सकता है ट्रांजिशन के बाद, एन एक्साइटेशन के बाद. उसके बाद अगर हम 3s1 के बाद की अगर p टर्म में देखेंगे तो 3p, 4p, 5p, ऐसे 3d, 4d, 5d, 4f, 5f, 6f, इस तरीके से. यानी जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एक्साइट होने के बाद इसकी ये अपॉर्चुनिटी है कि इन टर्म्स में जा करके पहुंच सकता है, और वहां रहने के बाद फिर ये अपना ट्रांजिशन लोअर एनर्जी स्टेट पे करेगा और वो स्पेक्ट्रल लाइंस उससे मिलेंगी. उनके ट्रांजिशन की भी कुछ रूल्स हैं और वो रूल उनको फॉलो करना है. अकॉर्डिंग टू दैट रूल देयर मे बी द so many possibilities, and according to that possibility they may have their intensity also. तो इंटेंसिटी का क्या रूल है, ट्रांजिशन का क्या रूल है, ये हमें जानकारी भी होनी चाहिए, एंड आई विल डिस्कस हियर. तो इन द एक्साइटेशन the total energy of the core does not changes. Therefore, the total energy of the atom is a constant plus the energy of optically active valence electron. बेटा इसमें क्या हो रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अगर हम नीचे देखें तो सभी इसके ऑक्टेट फुल है, तो उसको आप एक कोर के रूप में मान सकते हैं. तो अगर हम टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो एक तो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, और उसके बाद जो जिस कोर को हमने ये कंसीडर कर दिया कि ये अंदर का सेक्शन है, तो वो उसकी भी कुछ एनर्जी होगी. तो ये दो पार्ट मिला करके उस पूरे सिस्टम की एनर्जी को बना रहे हैं. अच्छा, दूसरी ये भी बात है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो कितना एक्साइट होगा, कितना लूजली है, कितना टाइटली बाउंड है सिस्टम से, ये कई बातों पे निर्भर करता है.
जैसे वो न्यूक्लियस के कितना करीब है, या उसकी सील्डिंग किस तरीके से है कि नंबर ऑफ जो ऑक्टेट फुल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करने का मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन जहां रहता है वहीं नेगेटिव चार्ज नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो ये वेव लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये पार्टिकल ना होकर के वेव की तरीके से होता है। तो ये लगेगा कि वो पूरे उस ऑर्बिट में हर जगह नेगेटिव चार्ज है। जैसे आप पंखा बहुत तेजी से चला दीजिए तो आपको ये बताना मुश्किल हो जाता है कि इसकी ब्लेड कहाँ पे लाई करती है। आपको लगता है कि धुंधला एक सर्किल बन रहा है, एक डिस्क बन रही है। ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट्स में रहते हैं वो एक शील्ड बनाते हैं, वो नेगेटिव शील्ड। इसी को कहते हैं कि जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देखा जाएगा तो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, यानी इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस से स्क्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि बीच में एक नेगेटिव शील्ड लग गई है उस पर। तो इन सब चीजों के आधार पर ये डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा लूजली बाउंड है कि टाइटली बाउंड है, और उसके हिसाब से ये किस स्ट्रक्चर को अप्रोच करता है या किससे इसकी सिमिलैरिटी होती है। ये सब बातें ऑटोमेटिकली उसमें बिल्ट इन हो जाती। तो फॉर कन्वीनियंस वी टेक दिस कांस्टेंट एज अ जीरो। यहाँ ये माना गया कि भाई जो इंटरनल कोर है उसका कोई रोल नहीं है, whatever the energy possessed with electron that is which is in outermost orbit, and that is obviously responsible for all the spectroscopic activities of that particular element. So that the total energy of the atom in certain state is equal to the energy of the optically active electron in that state. Comparing the energies of the alkali, that is the sodium example जो लिए हैं, atoms with the hydrogen atom in corresponding state, it is found that the energies of alkali atom is different in different states, are more negative than hydrogen because energy depends on Z and E, that is the effective charge. यानी चूंकि Zn पर डिपेंड कर रहा है, यानी हाउ मच नंबर ऑफ electrons are there, तो according to that which one will have the negative and which will have the more negative energy, that depends that how much value of Z is there. So however, as n increases, the alkali levels approach the corresponding hydrogen level because of screening, because more perfect, that is the Z and E approaching to the E value. तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इस पर अपना प्रभाव डालता है कि कोई जो सैंपल लिए हैं वो सैंपल हाइड्रोजन लाइक सैंपल के कितना करीब हो सकता है, यानी इसकी, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्कली, जितने भी एल्कली एटम देखेंगे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ट्रांजिशन के बाद जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी उनका कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस हाइड्रोजन से हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस डिस्कशन रिलेटेड टू दैट। फॉर अ गिवन n, द एनर्जी इज मोस्ट नेगेटिव फॉर द s electron which spend much more time near the nucleus and feel almost the full nuclear charge. देखो इसमें कहा गया भाई कि मोर नेगेटिव का मतलब होता है कि ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से वो बधा हुआ है सिस्टम से, और उसे निकालने के लिए, सिस्टम से अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये कारण इसका भी दिया गया है कि चूंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, इसलिए ऐसी सिचुएशन एस इलेक्ट्रॉन के लिए, एस टर्म इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होती है। पी डी एफ ऐसे से धीरे धीरे वो दूर जाने लगते हैं। इसीलिए एस और पी के बीच में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा, उतनी एनर्जी डिफरेंस और के बीच में, जैसे पी और डी के बीच में नहीं होगा, डी और एफ के बीच में नहीं होगा। अभी मैं आपको उसका फिगर मैंने जो बनाया है वो दिखाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। द एनर्जी बिकम less negative for PDF electrons. The dependence of energy is more important, that is sodium. The 4s level is more negative than 3d level.
तो इसको मैंने भी बताया भी आपको. Thus all the alkali level of a given N are shifted lower than the corresponding level of hydrogen. The shift being greatest for the S level and becoming smaller and smaller for the P, D, F other levels. In case of alkali metal spectra, does not depend only on principal quantum number. यानी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, जैसे हम क्या करते थे हाइड्रोजन के केस में कि बामर, ये लाइमन, बामर, फुंड, ये सीरीज सबके बारे में एन की वैल्यू केवल लेते थे वहां पर और इसका ट्रांजिशन लेते थे. लेकिन ये ट्रांजिशन, ये स्पेक्ट्रोलाइन केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही ना डिपेंड करके इनके जो ऑर्बिटल या एजिमुथल क्वांटम नंबर है उन पर भी डिपेंड करती हैं. क्यों? क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग आपको एस टर्म, पी टर्म, डी टर्म, एफ टर्म आ रहा है और इन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट होगी. उन एनर्जी स्टेट से ट्रांजिशन होगा तो स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगी. यानी आपका जो करस्पॉन्डिंग एल वैल्यू है which is giving the idea about the orbital quantum number, that is also responsible for the spectroscopy of the alkali metals. Due to which we have 4 series in alkali metal. Alkali metal में हमें 4 सीरीज मिलती है. वो कौन कौन से हैं? एक प्रिंसिपल सीरीज जो मोस्ट इंटेंस होती है. अब जैसे आपको इसका ऑप्शन मिल सकता है, क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में कि भाई in case of alkali metals which series is most intense, तो प्रिंसिपल आ जाएगी और आगे की सीरीज का नाम लिया जाएगा. या आपको और भी इंटेंसिटी पूछ ली गई, उनका रेशियो पूछ गया, कौन ज्यादा कौन कम है. तो ऑल दीज थिंग्स आर very witty question and you should have the focus on these questions when you are studying the spectroscopy. तो मोस्ट इंटेंस लाइन किसकी है? प्रिंसिपल सीरीज की है, which lie in the absorption and emission both spectra. And sharp series, they have the fine lines. Diffuse series, they are the broader in nature. Fundamental series, infrared and infrared region, ये 4 तरीके की सीरीज हैं. इसमें एक क्वेश्चन बहुत नेचुरल बनता है कि why only we are writing here that the intense series corresponding to the principal series lie in the absorption and emission both the spectra. Why such thing has not been written for the sharp series, diffuse series, fundamental series? और अगर नहीं लिखा है तो यहाँ क्या होना चाहिए? हमें लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? आप लोगों में से कोई बताए भाई. शार्प सीरीज के आगे फाइन लाइंस लिखी हुई, इसमें हमें एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों स्पेक्ट्रा लिखना चाहिए. दोनों पॉसिबल है या नहीं, या एक पॉसिबल है? कौन पॉसिबल है, कौन नहीं पॉसिबल है? सिमिलरली डिफ्यूज और फंडामेंटल सीरीज के लिए बताओ भाई. देखो ये बात मैंने बताई नहीं है आपको, लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस की बात है. इस तरीके की बात का डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं. यस सर, क्योंकि जो भी एब्जॉर्प्शन होके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मोस्ट ग्राउंड स्टेट में होते हैं, उसके बाद ही इनिशियल लेवल एक्साइट पे ही होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल सीरीज है वो एस टर्म के करस्पॉन्डिंग है. यही एब्जॉर्प्शन का चांस है. इसके ऊपर की सीरीज तो एक्साइटेड स्टेट में आ रही है. तो एक्साइटेड स्टेट की जितनी भी सीरीज हैं वो कुछ एनर्जी के बाद आई हुई हैं. तो वहां से इनके ट्रांजिशन और एमिशन के ही चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है और ग्राउंड स्टेट के बाद बहुत रेयर ऐसा होता है कि हायर स्टेट में रहे और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे. ये बहुत हॉट सिचुएशन में होता है, जो स्टार वगैरह में ऐसा सिचुएशन प्रिवेल करती है. तो इसीलिए पहले वाले में एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों लिखा है. यदि आप लिखना ही चाहते हैं तो बाकी के तीनों में आपको एमिशन स्पेक्ट्रा ही लिखना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं लिखा जा सकता है. बहुत रेयर केस में ही एब्जॉर्प्शन लिख सकते हैं. एनीवे, so friends, what I was telling you people that I draw this picture by own, you will see here that the 3s, that is the outermost electron of the sodium,
and then after the transition from the different level, from that is from the P, from the D, and from the P and D, from both, there is the possibility of the transition. So, no, sorry, from P only there is the transition. Why not from the S there is the transition? Why not from the D there is transition? Why not from F there is transition? While you can see here that there is possible transition from S to P and D to P both, but only one transition is allowed in case of S, that is from P. Anybody can tell me? You might have read this in your BSc third year. Just I'm repeating the things and trying to clarify the thing. But what I found that in the preparation of the NET-GATE, 70% question you are getting from the BSc third year, not from the MSc. And if you are getting, that is from the most of the part from the MSc first year, nothing from the MSc final year. Only one paper deliberately I have included there. There is two papers, that is the statistical thermodynamics and nuclear physics. So some part you will get from that, nothing else you will get from the final year. Most of the thing will be from the first year. तो बताओ भाई ये ट्रांजिशन ऐसा क्यों है? आकांक्षा के अलावा कोई बताएगा? प्रांजल तुम बताओ बेटा। प्रिया तुम बताओ। अरे कुछ बोलोगे तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारे पढ़ाने से कुछ सुन भी रहे हो तुम लोग। प्रिया, अरे मेरी आवाज सुनाई पड़ रही कि चद्दर ओढ़ के सो गई तुम? एनीवे कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं। देखो इसके ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल है। वो रूल ये है कि S should be delta, L should be equal to ±1। आगे आपको बताएंगे, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मुझे उम्मीद थी कि आप बता देंगे इसको। तो वो तो हमारे घर से जरा चार्जर ले आओ। तो ये ±1 होनी चाहिए एल की वैल्यू, इसलिए आप देखो जहां जहां ±1 सेटिस्फाई कर रहा है वो ट्रांजिशन हो रहा है। दूसरी चीज देखो 3s और 3p के बीच में कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और अगर आप 4s और 4p के बीच में देखें तब भी डिफरेंस है। और जैसे आप देखो 3p के ऊपर 3d है, और अगर थोड़ा सा ऐसी जगह पे आते हैं जहां पर दोनों सब में थोड़ा कम कम डिफरेंस है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच का डिफरेंस घटता जा रहा है। और आप 5s के तरफ जब देखेंगे तो 5s थोड़ा डीपर है, 5p थोड़ा लेस डीपर है, यानी ऊपर है, और उससे थोड़ा सा ऊपर 5d है, इससे थोड़ा सा ऊपर 5s है। देखो एकदम बहुत माइनर डिफरेंट। और जब आप ऊपर और 6 पे जाएंगे तो देखो 6s 6p के बीच में बहुत कम डिफरेंस। सिमिलरली 6p 6d और 6d और 6f के बीच में तो बहुत ही कम डिफरेंस है, दे आर ऑलमोस्ट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। तो these are the reflection regarding to the excitation of electron and possible transition from the different levels of that in case of alkali metal। तो आइए देखते हैं क्या इसके बारे में आइडिया लिए। As far selection rule is concerned, due to the dependency of the energy level on orbital quantum number, there are certain selection rule to decide the transition. Delta n is equal to integer, पहला तो ये। दूसरा डेल्टा L is equal to ±1। तीसरा डेल्टा J is equal to 0 ±1 total angular momentum। Above all are the condition for allowed transition, except these condition the transitions are forbidden। ये कंडीशन जहां फुलफिल है वहीं पर ट्रांजिशन पॉसिबल है, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा।
लेट अस हैव द कंडीशन फॉर द डिफरेंट सीरीज। कौन सीरीज कहाँ मिलेगी? प्रिंसिपल सीरीज के लिए देखो, NS से 3S, यानी सॉरी NP से 3P। तो NP से 3P मीन्स N माने 1 2 3, जैसे अगर N, लेकिन N की कुछ डिसाइडेड वैल्यू होगी इस सीरीज के लिए। लास्ट में डिफाइंड देखो, N की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी ट्रांजिशन कहां कहां से होगा? 2P से 3S, 3P से 3S, 4P से 4S, 3S, 5P से 3S। क्यों? क्योंकि टर्मिनल पॉइंट इसका लोअर साइड फिक्स है, और इसके करस्पॉन्डिंग जब हम L की वैल्यू देखेंगे तो L is equal to 1 for P and L is equal to 0 for S, and hence delta L is equal to 1 where L is equal to 2. This is corresponding to the principal series. Similarly for the 2P से 3S में ट्रांजिशन होगा तो ये n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। कौन? सर जो 2P से 3S में ट्रांजिशन होगा सर अगर, तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ हम लोगों ने देखा है, 4P कहाँ S से जो ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम S पर कोई ट्रांजिशन ले रहे हैं, S पे ट्रांजिशन तो P, हाँ 3P से भी हो रहा है, 3P से स्टार्ट हो रहा है सर, तो 3P से भी हो रहा है, 4P से। हाँ तो ये एक ग्रेटर आर इक्वल देन होना, हो सकता है वो साइन छूट गया हो, तो ग्रेटर आर इक्वल देन, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि P का जो इसके करस्पॉन्डिंग है उसके ऊपर होगा ही होगा, क्योंकि S तो डीपर पे है, तो वहां से ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो ग्रेटर आर इक्वल का साइन इसमें आप लगा लें। NS is approaching to 3P, and hence again you may have the value that is the delta L is equal to -1, and accordingly you may have the selection value of N, that is N is greater or equal than 3. Similarly, ND to 3P, and hence delta L is equal to again 1, and accordingly you can see the figure, and corresponding to that you can set the value of N. So mostly that has been written correct way, only the equal sign has been left there. So N is equal to N is equal or greater than the corresponding value what has been written there. So this is corresponding to different series. What the observation is there? A practical sodium source contains the numerous atoms so that all possible excited states are available for the transition which take place through all the allowed path. देखो क्योंकि देखो जब भी कोई हम सोडियम एटम लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम आइसोलेटेड एटम ले रहे हैं, तो देयर विल बी द large number of atoms. So that's why this may be the possibility that the excited states are available for the all excited possible excited states are available for the transition. इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि सभी सीरीज के मिक्सचर का स्पेक्ट्रम हमें दिखेगा, किसी भी हम अगर ऐसे सैंपल को लेते हैं सोडियम की। Hence, all the 4 series are simultaneously emitted in the spectrum. Since ultimately electron return to the ground state, which involves the principal series, the lines of the principal series are most intense and persistent. ये रीजन है इसका, ये कारण है इसके इंटेंस होने का। ये आप रियलाइज करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। The sharp and diffuse series have the same convergence limit, that is 3P. ये दिखाया भी गया है, अगर आप फिगर को देखें वहां तो द वेव नंबर डिफरेंस बिटवीन द लिमिट between this limit and the principal series limit is equal to the wave number of the first line of the principal series. This is known as the Rydberg-Sisters law. कभी कभी ये सिस्टर्स Rydberg-Sisters law क्या होता है ये पूछा जाता है। तो ये जो फिगर हमने बनाई है उन ट्रांजिशन में जो वेव नंबर का डिफरेंस है डिफरेंट सीरीज के करस्पॉन्डिंग, जहां पर एक जगह कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो रिलेशन है उसी रिलेशन को ही हम Rydberg-Sisters law कहते हैं।
Similarly, the wave number difference between the diffuse series limit, that is 3p label, and the fundamental series, that is 3d label, is equal to the number of the first line, that is 3d to 3p of the diffuse series. This is known as the Runge's law. तो ये अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग लॉज हैं, और ये कहाँ से हैं इनको आप याद रखेंगे, हो सकता है कभी इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. An absorption spectra of the alkali atom, say sodium, is obtained when the light from the continuous source is passed through a cooler sodium vapor. When this is the case, the optical electron in an atom absorbs the quantized energy and passes to some higher level in accordance to the selection rule of delta L is equal to plus minus 1. So all these things you can realize from that picture also, what transition we have ensured there. Thus, the continuous light is robbed of certain wave number, which appears a dark line in the continuous spectra. इसमें जो continuous light अगर हम इसमें दे रहे हैं तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें डार्क लाइंस आ रही है इन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में. तो रॉब्ड ऑफ माने वो लाइन लुट गई, वहां से वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से हम ये डार्क लाइंस इन दैट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में मिल रहा है. उसका रीजन ऊपर के पैरा में दिया भी गया है. Since at room temperature, almost all atom in the vapor are in the ground state. देखो ground state में है, that is the 3s. The only possible, that is the absorption transition from 3s to the higher level of P, where n is greater than 2. These transitions give rise to the principal series. देखो यहाँ इस absorption में यानी principal series में इसीलिए absorption हो रहा है कि जो lower level पर है, यानी outermost electron of the sodium, that is the 3s1 electron, getting the energy, and it is approaching to the higher level of P level. So obviously, if it is going to the P level, it is absorbing energy. That way, absorption spectra, absorption transition is possible in case of principal series. Hence, it is only the principal series which appears in the absorption as well as in emission. What the question I was asking when there was the statement that what I should write against to the different series, either the emission and absorption both are the emission only. The sharp, diffuse and fundamental series appears in emission only. यानी इन सब में केवल emission series होगी, absorption का chance नहीं है. This is very important, that is the intensity rule. If the transitions are occurring in such a way that the delta L and delta J are changing with the same value, the intensity will be most intense. अगर आप intensity को observe करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि अगर delta L और delta J की value बराबर है तो ये सबसे intense light होगी. If two lines are occurring with the same value of delta L, अब ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइन हो, दोनों में डेल्टा एल और डेल्टा जे की वैल्यू बराबर हो, तब दोनों में से कौन ज्यादा इंटेंस होगा? ऐसे में जिनमें जो हायर वैल्यू ऑफ जे से ट्रांजिशन हो रहा है वो मोर इंटेंस होगा रादर देन द अदर कंडीशन. जैसे हम ये कहें कि J इज इक्वल टू 3 से, और J इज इक्वल टू 3 तो होगा ही नहीं, हमेशा हाफ के मल्टीपल में होगा. 3/2 से मान लीजिए 1/2 पे ट्रांजिशन हो रहा है, और एक हो रहा है J इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 पे ट्रांजिशन हो रहा है. तो एक में तो 0 आ जाएगा और दूसरे केस में आ जाएगा 1. तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां हायर वैल्यू ऑफ J है यानी 3/2 से जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल, इन केस एग्जाम्पल भी दिया गया है बहुत अच्छा यहाँ पर. द केस ऑफ सोडियम D1 and D2 lines, there are two transitions, that is 3 to P 3/2. नोटेशन है इसका, से 2S 1/2. यहाँ पर L is equal to 1 है और फिर L is equal to 1 से
L is equal to 0 पे ट्रांजिशन हो रहा है, डेल्टा L is equal to 1 है, और J की वैल्यू 3/2 से J is equal to हाफ पे ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ भी डेल्टा J is equal to 1 है। तो दूसरा ट्रांजिशन क्या है कि P हाफ से S हाफ पे हो रहा है, तो यहाँ भी L is equal to 1 से L is equal to 0 पर हो रहा है, डेल्टा L is equal to 1 अगेन हो गया, और J is equal to हाफ से J is equal to हाफ पे ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा J की वैल्यू 0 हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली वाली लाइन ज्यादा इंटेंस होगी, दूसरी वाली लाइन कम इंटेंस होगी, although the delta L is same in both the cases। तो यानी पहला केस हुआ कि डेल्टा L और डेल्टा J बराबर नहीं है। अगर बराबर पहले वाले केस में बराबर है डेल्टा L और डेल्टा J, दूसरे केस में डेल्टा L और डेल्टा J बराबर नहीं है, इसलिए दूसरी वाली कम इंटेंस होगी, पहली वाली ज्यादा इंटेंस होगी। और अगर ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लें जिनमें डेल्टा L और डेल्टा J दोनों बराबर हैं, लेकिन एक के केस में J की हायर वैल्यू से ट्रांजिशन हो रहा है, एक की केस में J की लोअर वैल्यू से ट्रांजिशन हो रहा है, तो जहां J की हायर वैल्यू से ट्रांजिशन हो रहा है वो लाइन ज्यादा इंटेंस होगी। इन दिस केस फर्स्ट ट्रांजिशन D2 line is more intense because in this case the transition is occurring from the higher that is J is equal to 3/2, so J is equal to half. In the other it is from J is equal to half to J is equal to half। लेकिन इसमें तो वैसे भी डिस्टिंग्विश है कि डेल्टा L और डेल्टा J की वैल्यू बराबर नहीं है। अगर हम कोई ऐसा भी केस लें कि डेल्टा L और डेल्टा J बराबर है, और अगर इस तरीके की सिचुएशन है J की वैल्यू में, तो J की वैल्यू जहां हायर से लोअर पे ट्रांजिशन हो रहा है, दैट विल बी मोर इंटेंस। The example has been shown there. Here you can see here कि 2p half, 3 2p 3/2, 3 2p s half, और यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 3d 3/2, 3d 5/2, 3p 3/2, 3p half। So according to that you can see the transition and you can justify this transition and its intensity, what I have drawn there in the bottom कि उनकी हाइट उनकी इंटेंसिटी को बताता है, तो कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा, you can commensurate and you can just read it and you can compare with the intensity rule and you can get the clarity according to the intensity rule of the spectral line of the alkali metals. So it is all about of today what I was interested to discuss with you people. If anybody have any question then let me know, otherwise we should stop here। किसी को कुछ पूछना है?